Hello students, welcome to the channel. Today we are going to study about transportation of material in plants. We are continuing our chapter 6, life processes of class 10th biology. Here we will study that how plants transfer material from the root to any body part. In this, what we see that if there is a plant, we see there are water and minerals that are present in the soil. The minerals that is mainly included nitrogen, phosphorus, magnesium, manganese and sodium which are required for the plant. So how it moves from the root, from the soil to the plant. So it is basically passes through xylem. Xylem which carries water and minerals from the root to the plant. In xylem, tissue cells like vessels and tracheids of the root, stems and leaves are interconnected. ये सब एक दूसरे से interconnected होते हैं और ये एक वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाते हैं. ये वाटर कंडक्टिंग चैनल पूरी के पूरी प्लांट के पार्ट तक जाता है. Here, this water then moves to the leaves or to the stem. Now, we have here another body part that is phloem. The phloem, on the other hand, is responsible for transporting sugars, hormones, and other organic compounds throughout the plant. And this process is called translocation. इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं और वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपीरेशन कहते हैं. दिस फ्लोएम we say that it carries food to the other body part. जितना भी खाना होता है वो बॉडी के हर पार्ट तक जाता है. All the parts of the plant are interconnected with these conducting tissue. ये जितने भी conducting जो हमारे प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो इन दोनों जाइलम और फ्लोएम से इंटरकनेक्टेड होते हैं. Now let's understand that how to transport water in the plant. So it take place by two ways: root pressure or transpiration pull. Now, first, let us see root pressure. Here we observe a plant. In this, we have here water which is present in the soil. Water will move upward due to the difference in the concentration. ये वाटर का जो होगा वो मूवमेंट होगा और वाटर का मूवमेंट कहाँ से होगा, किस वजह से होगा? ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, राइट. सो रूट प्रेशर इट इज अ फिनोमिना विच इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट. ऐसा फिनोमिना जो प्लांट्स में होता है वेयर देर इज अ पॉजिटिव प्रेशर क्रिएटेड इन द रूट लीडिंग टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. इसमें क्या होता है, पानी और जितने भी डिजोल्व न्यूट्रेंट होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं और वो कहाँ जाते हैं, जाइलम सैप में जाते हैं, राइट. हियर वाटर मॉलिक्यूल एंटर फ्रॉम द रूट as it enters it moves to the root pressure. It is adequate to move water only in a small plant like herbs and shrubs or the small plant. However, it is not enough to move the water in the tall tree. So then, how is water transported in tall tree? So here it is called transpiration pull. Here, what is transpiration pull? We see epidermal cell. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपीरेशन पुल? हमने कहा दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी सब्सटेंस होता है उसको रूट से अदर बॉडी पार्ट तक पहुंचा सकते हैं. तो द नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर डिस्कसिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रांसपीरेशन पुल. सो ट्रांसपीरेशन पुल we say that is required for the movement of the food and it is through epidermal cell or xylem. In this we study the xylem which is present in the stem and xylem that is present in roots. The loss of water in the form of water vapor from the aerial part of plant like leaf is known as transpiration. The loss of water in the form of water vapor. आप देखते हैं कि
जब सनलाइट लीव्स पर आती है तो वाटर वेपर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। वाटर वेपर की हेल्प से वाटर क्या हो जाता है, सनलाइट की हेल्प से वाटर वेपर होते हैं, वेपराइज हो जाते हैं और पानी की उसमें लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। फर्स्ट वाटर विल इवेपोरेट फ्रॉम द एपिडर्मल सेल। कहाँ से जाता है, एपिडर्मल सेल से। लेट्स कंसिडर सनलाइट। नाउ दिस सनलाइट इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द एपिडर्मल सेल। दिस लीड टू डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द एपिडर्मल सेल। और इससे पानी कम हो जाता है, राइट। एज इट मूव्स इट डिक्रीज द वाटर लेवल इन द सेल। सो दिस क्रिएट ए सक्शन पुल विच पुल द वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ द लीफ। और इस तरह से पानी ऊपर से कहाँ जाता है, अंदर आ जाता है, किसमें, सेल में। दिस गेन अगेन क्रिएट a suction pull which pull water from the xylem of the stem। यहाँ से जो भी स्टेम होती है वहां से पानी फिर कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। देन अगेन पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ द रूट। अब ये रूट से वाटर को क्या करता है, सक करता है। बिकॉज ऑफ दिस रूट एब्जॉर्ब मोर वाटर। और इस तरह से क्या होता है, इसी वजह से जो रूट्स होते हैं वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, रूट जो होते हैं वो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एंड दिस पुल इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। अगेन टेलिंग इट, हमने क्या बताया कि ये जो भी होगा वो किसकी वजह से होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होगा। हमने कहा वाटर का लॉस होगा। वाटर का लॉस कहाँ पर होगा, प्लांट्स की लीव्स में होगा, इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। फर्स्ट वाटर विल इवेपोरेट फ्रॉम द एपिडर्मल सेल। देन वट वी ऑब्जर्व, जैसी सनलाइट होती है तो ये वाटर वेपर्स करती है, वेपराइज होती हैं और वाटर का लेवल यहाँ कम हो जाता है। तो ये लीव से वाटर क्या करता है, एपिडर्मल सेल में जाता है। यहाँ एपिडर्मल सेल में जाने के बाद ये वाटर कहाँ से सक करता है, लीव से। देन आफ्टर दैट ये जो वाटर होता है वो स्टेम से सक करता है, स्टेम से वाटर लीव्स में जाता है। Then after this there is a loss of water in the stem and then it suck the water from the roots. Root से water stem में जाता है, right? So this is how this transportation of water occur in the plant, and this is called transpiration pull, right? Here it help in the transport of water and minerals in a tall plant during the day when the stomatas are open. Food manufactured in the cell of the leaf is transported to each cell of the plant। जो भी खाना लीव्स की सेल में बनता है उसको प्लांट के हर सेल तक पहुंचाया जाता है। सो हाउ इट मूव्स, कैसे मूव करता है। सो besides amino acid, excess food is stored in the storage organ। In this we see there is a conducting tissue that is called phloem in both upward and downward direction. In the phloem, the transport of these food particles that is called translocation. Here we observe the water that is transferring through xylem and the food material like we say sucrose, it is transferred to phloem। खाना जो होता है वो फ्लोएम के थ्रू मूव करता है और वाटर जो होता है वो जाइलम के थ्रू। इन दिस इट फॉर्म्स एटीपी। This result in the movement of water into the cell due to the osmosis. We say that the food movement that is due to the water movement into the cell that is due to the osmosis. The result in the increase in the pressure in the cell. The pressure moves the food particle to the adjacent cell with the low pressure. Here we observed it moves to the root cell. This allows the phloem to move material according to the plant's need. In the flowering seasons, sugar stored in the food or stem is translocated to the buds for growing them into the flower। जितना भी शुगर होता है वो ट्रांसलोकेट होता है किस पर, बड्स पर, ताकि वो क्या करे, ग्रो कर सके। नाउ दिस इज ऑल अबाउट इट। Here what we mainly discuss the ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। हमने ये पढ़ा कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो प्लांट में किस तरह से मूव करते हैं, राइट। सो हियर वी से द मेन पार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल
for this, that is xylem. वो कौन होता है? xylem होता है, right? So water, that is very very important chemical requirement as a solvent. हम ये देखते हैं कि जो वाटर होता है वो बहुत ही important होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में. इट इज नीडेड एज, कैसे जरूरी होता है? एज अ रॉ मटेरियल, राइट? लाइक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इसकी जरूरत होती है, राइट? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वी से कि जब वाटर प्रेजेंट होगा तभी होगा, ठीक है? फ्रॉम विच द प्लांट्स इवॉल्व मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड हाइड्रोजन फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो हेयर वी से कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल, राइट? तो ये चेंज हो जाता है किसमें? C6H12O6 में. प्लस यहाँ पर निकलती है ऑक्सीजन, प्लस में बहुत सारी अमाउंट में क्या मिलता है हमारे को? ATP, दैट इज एनर्जी, राइट? सो दिस हेल्प्स इन किस चीज में? ट्रांसलोकेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस and minerals and perhaps in this manner maintain the intercommunication. तो इस तरह से हमने देखा कि जितना भी पानी होगा वो क्या करेगा? जितना भी सब्सटेंस होगा उसको क्या करेगा? मूव करेगा. सो हियर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स three distinct and interconnected process. So first is absorption. Absorption of water and mineral. Water and mineral, right? Second, that is ascent of sap, or you can say upward movement. अपवर्ड मूवमेंट जो अभी हमने पढ़ा बिल्कुल सेम एज इट इज मैं उसको बता रही हूँ, बस हाउ टू राइट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. एंड थर्ड, दैट इज ट्रांसपीरेशन. Transpiration that we called, it is a loss of water in the form of water vapor. वाटर वेपर की फॉर्म में जब पानी क्या होता है? कम हो जाता है तो उसको बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कि किस तरह से वाटर क्या करेगा? इसमें एब्जॉर्ब करेगा. सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. जस्ट अ मिनट. हियर Here, first of all, we will study about absorption of water and mineral. So, in this, the water and minerals that are absorbed by land, plant from the soil. जितना भी पानी और मिनरल होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? इट इज़ फ्रॉम द सॉइल. कहाँ से जाएगा? सॉइल से, ठीक है? वेयर इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉइल सॉल्यूशन. और जितना भी वाटर और मिनरल होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? सॉइल सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, ठीक है? The main water absorbing organs are root hair. जो मेन वाटर को एब्जॉर्ब करने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है? एंड मिनरल ऑब्जॉर्बिंग ऑर्गेन्स आर, और मिनरल को ऑब्जॉर्ब करने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं रूट एपिडर्मल सेल at root apex, right? So the water is absorbed actively by the water potential difference between the soil and root hairs. क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस होता है सॉइल सॉल्यूशन और रूट हेयर्स में, तो जितना भी वाटर होता है वो क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट? सो वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम, कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल यू कैन से, टू दी लोअर वाटर पोटेंशियल. जहाँ पर पानी कम होगा वहाँ पर ये क्या करेगा? मूव करेगा, राइट? एंड देन माइग्रेट फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम सेल टू सेल, पासिंग फ्रॉम एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स. एपिडर्मिस से कहाँ जाएगा? कॉर्टेक्स पे. कॉर्टेक्स से कहाँ जाएगा? इट इज मूव टू एंडोडर्मिस. कहाँ मूव करता है? एंडोडर्मिस में. And from endodermis to xylem vessels, right? And tracheates. Here, this complete is called lateral transport. इसको क्या बोलते हैं? Lateral transport.
द मिनरल सॉल्ट मूव फ्रॉम, कहाँ से मूव कर रहा है, फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर along the concentration gradient by the passive absorption or against the concentration gradient by the active absorption, right? तो फाइनली क्या करेगा, वो रीच करेगा कहाँ पर, वेसल्स में, ट्रैकियार्ड्स में ऑफ जाइलम, राइट, ठीक है। फ्रॉम देयर दे मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएंगे, एंड इट हैपन बाय द प्रोसेस जिसको बोलते हैं हम क्या, एसेंट ऑफ सैप, क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। सो हियर अंडरस्टैंड इट, what is ascent of sap or upward movement of water. So mainly what we see that there are two important points here. First, that is root pressure, रूट प्रेशर जो भी हमने स्टडी किया था, और सेकंड दैट इज हियर ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल, राइट, और यू कैन से कोहेशन टेंशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है कि द रूट अब्सॉर्ब वाटर एंड एक्सर्ट ए प्रेशर, रूट क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा और एक प्रेशर लगाएगा, इस प्रेशर को ही क्या बोला जाता है, रूट प्रेशर बोला जाता है, विच पुशेस, जो पुश करता है किसको, वाटर को, अपवर्ड, इट पुशेस वाटर अपवर्ड, राइट। सो द रूट प्रेशर डेवलप्स इन द ट्रैकियल एलिमेंट्री, मीन्स जो जाइलम है उसमें जाता है, और इस तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं किसमें, रूट्स में। द रूट प्रेशर थ्योरी इज एप्लीकेबल इन मेनली, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है, इट इज मेनली एप्लीकेबल इन हर्ब्स बट नॉट इन टॉल ट्रीज, जो बड़े ट्रीज होते हैं इसमें एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। देन नेक्स्ट दैट इज ट्रांसपीरेशन पुल। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसपीरेशन पुल। हियर हमने ये देखा कि ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, इट इज अ कोहेशन टेंशन थ्योरी, मेनली हम ये कहते हैं ये क्या होती है, कोहेशन, कोहेशन और एडेशन आपने पढ़ा होगा, इट्स अ टाइप ऑफ फोर्सेस, ये फोर्सेस में सेम तरह का मटेरियल और डिफरेंट तरह का मटेरियल होता है, ठीक है। सो हियर वी सी दैट द अपवर्ड, देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन tall trees, right? So this upward movement of water, it is through transpiration pull. The main force responsible for the upward movement of water is कौन सा था हमारा, ट्रांसपीरेशन पुल, पानी ऊपर आ जाता है। This is generated in the leaves which pull the water column filled in the xylem, tracheids and vessel. The major event of upward movement of water are as follows. Let's consider here. Here what we see, क्या देखते हैं हम यहाँ पर, the water filled in the xylem, tracheids and vessel, जो भी होता है वो प्योर नहीं होता, it has several minerals element dissolved in the water. वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। So the mineral needed by the plant are absorbed from the soil through root hairs. वो कहाँ जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे, रूट हेयर्स के थ्रू, and other epidermal cells of root tip. They are taken up in the inorganic forms such as, किसकी फॉर्म में जाते हैं ये, नाइट्रेट्स की फॉर्म में या फिर फोस्फेट्स की फॉर्म में, राइट। द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर, जितना भी पानी यहाँ से गया वो एब्जॉर्ब हो जाता है, किससे, रूट हेयर से या फिर एपिडर्मल सेल से, एंड देन मूव थ्रू दी रूट कॉर्टेक्स, और कहाँ चला जाता है, रूट कॉर्टेक्स में। देन वाटर एंड मिनरल्स मूव अपवर्ड इन द ट्रैकियार्ड्स, कहाँ चला जाता है ये, ट्रैकियार्ड्स में, या फिर वेसल्स ऑफ जाइलम में, राइट, वेसल्स ऑफ जाइलम में। नाउ हियर vessels, they are found in the xylem of another flowering plant, that is फ्लावरिंग प्लांट पोजेस बोथ, इनके अंदर दोनों होते हैं, वेसल्स भी होते हैं, ट्रैकियार्ड्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें सिर्फ क्या होते हैं, ट्रैकियार्ड्स होते हैं, राइट, विच सर्व एज मेन कंडक्टिंग टिश्यू, इसमें हमारे पास दोनों होते हैं, ठीक है। तो जाइलम, ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल, दे आर डेड सेल और थिक वॉल्ड होते हैं। ये जो ट्रैकियार्ड्स होते हैं, दे आर लॉन्ग, थिन, स्पिंडल शेप with tapering ends. They have a pit in the thick air walls through which the water flow from one trachea to another. The xylem vessels are tubular structure extending from root to the top of the plant. The cells are placed one above the other with their ends
perforated forming a continuous tube. Right here we see कि जैसे ही यहाँ पर हमने कहा था कि जो सेल होती है यहाँ पर ये वाटर मूव करता है. Lumina of trachea vessels are filled with the sap, and sap moves upward from one trachea to another. Right? The water and minerals filled with inside the xylem capillaries form a continuous column which cannot be broken or pulled. इसको ना तो ब्रेक किया जाता है ना ही पुल किया जाता है. Thus unbroken water column is just like steel rope. तो इसको मान लिया जाता है ये कैसे बिहेव करता है एज ए rope. So loss of water in the form of vapors through transpiration is replenished by the movement of fresh supply of water to the leaf. ठीक है, पानी दोबारा से लीफ से आता है, वो नीचे से ऊपर खिंचता रहता है. राइट, तो ये जो होता है उसको बोलते हैं हम क्या, एसेंट ऑफ सैप. राइट, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.